بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ فقر میں ریاضت کی حیثیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ تو میرے دوست، ریاضت جو ہوتی ہے نا، ایسے لغوی طور پر ایکسرسائز کو کہتے ہیں، ورزش کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہماری جسمانی ضرورت ہے ایک ورزش، اسی طرح روحانی طور پر بھی ورزش، جسے ہم ریاضت کے نام سے جانتے ہیں، وہ ضروری ہے۔ ہم کسی قسم کی بھی ایکسرسائز جب کرتے ہیں ہماری پریکٹیکل لائف میں، کسی بھی چیز میں جب ہم مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس مہارت کے لیے ہمیں کسی چیز کو بار بار ریپیٹیولی یعنی دہراتے ہوئے اسے کرنا پڑتا ہے، تاکہ جو ہمارا مقصود ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ میں ایک سادی سی مثال اس میں دیتا ہوں کہ جیسے ایک باڈی بلڈر، اگر اس کا مقصود اس طرح ہے کہ میں جناب باڈی بلڈنگ کر کے کسی چیمپئن شپ میں حصہ لے کے تو میں اپنا نام کماؤں، تو اسے مسلسل اپنی باڈی کو بلڈ کرنے کے لیے ایک طویل ایکسرسائز میں سے گزرنا ہوگا، تاکہ اس کا جو مقصود ہے وہ اسے حاصل ہو سکے۔ اب اس کی اس ایکسرسائز سے جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو اس کی اس ایکسرسائز سے کوئی خارجی چیز اس میں داخل نہیں ہوگی۔ یعنی ورزش کرنے والا، کوئی ایتھلیٹس، یا وہ کسی دوڑ میں حصہ لینا چاہتا ہے، کوئی قوت سے متعلقہ کوئی کسی کمپٹیشن میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو کسی قسم کی بھی اس کی جو ایکٹیویٹی ہوگی جس میں وہ مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے مسلسل کرنا ہوگا، اور اس میں کوئی خارجی چیز اس میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا کہ اس کی اس ورزش کی بنیاد پر اس میں موجود صلاحیتیں ابھر کر باہر آنا شروع ہو جائیں گی۔ فطرت کے اصول کے مطابق آپ جس چیز کو جتنا زیادہ یوٹیلائز کریں گے، جتنا زیادہ استعمال کریں گے، وہ چیز اتنی زیادہ آپ کے لیے کارآمد ہو جائے گی، اور اتنی مہارت آپ اس میں حاصل کر سکیں گے۔ اس کی اور چھوٹی سی میں مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ہی کے جسم میں آپ کے دو بازو، اگر آپ دائیں بازو سے کام کرنے والے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کے بائیں بازو کی نسبت آپ کے دائیں بازو میں قوت فطری طور پر زیادہ آئے گی، کیونکہ آپ سب سے زیادہ کام اس سے لیتے ہیں۔ اسی طرح جو لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، بائیں بازو سے کام لینے والے، وہی کنڈیشن ان کی ہوتی ہے کہ جب وہ بائیں بازو سے زیادہ کام لیتے ہیں تو ان کا بایاں بازو ان کے دائیں بازو کی نسبت زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک کام اس سے لیا جاتا ہے، جو صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ مسلسل کام کرنے سے وہ صلاحیتیں باہر آ جاتی ہیں۔ یہ مثال تو میں نے دی ہے مادیت کے حوالے سے، کہ ہمارے اپنے جو جسمانی صلاحیتیں ہیں کہ انہیں ابھارنے کے لیے، انہیں ایک کمال مہارت تک پہنچانے کے لیے ہمیں مسلسل ایک ایکسرسائز سے گزارنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی اصول کی بنیاد پر خانہ فقر میں ہمارے اندر جو روحانی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں، ان روحانی صلاحیتوں کو بھی ابھارنے کے لیے، انہیں باہر لانے کے لیے ہمیں ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، جسے ہم ریاضت کا نام دیتے ہیں، اور وہ ایک تسلسل کا نام ہے۔ بیسیکلی کوئی ایسا ریاضت نہیں، اس طرح کی نہیں ہوتی، تو یہ بالکل ایک غلط نظریہ ہے کہ ریاضت بالکل چند دن پر جو منحصر ہوتی ہے یا چند گھنٹوں پر منحصر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہ جس میں دوام ہے، یعنی ہمیشگی والا عمل، تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی کیا جانے والا عمل جو ہے وہ ہمیشہ بہترین عمل ہوتا ہے۔ ہم روحانی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے کچھ ایسی ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں جن میں اگر کچھ ایک
सीधा सीधा अगर बात कर लूँ इस हवाले से कि जब हम, क्योंकि अल्लाह बादशाह जी ने शुरू में ही हमारी रूह को एक पाकीज़ा रूह नफ्स ज़किया के तौर पर जो है वो मुतहम्मल किया है, एक कामिल ठहराया है, तो वो एक पाक रूह तो ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद है। हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से या अपनी उस रूह की पाकीज़गी को बरकरार रियाज़त के ज़रिए से ना रख पाने की वजह से वो थोड़ी आलूदा हो जाती। अब उसे दोबारा उसी स्टेज पर लाने के लिए कि जो सलाहियतें, ये कोई खारजी चीज़ नहीं है, यानी रियाज़त के ज़रिए से बाहर से कोई चीज़ आपके अंदर दाखिल नहीं होगी, बल्कि आप ही के अंदर मौजूद रूहानी सलाहियतों को उजागर करना मकसूद होता है। इसमें मैं ज़ुहद की बात कर लूँ, इसमें मैं जहद की बात कर लूँ, इसमें मैं इबादत की बात कर लूँ, तो ये सारे बेसिकली उसके स्टेप्स हैं कि ज़ुहद के ज़रिए से क्या होता है कि हम वो तमाम तर मामलात जिससे रूह आलूदा हो रही होती है, यानी रूहानी मामलात अगर मादियत पसंदी की वजह से अगर आलूदा हो रही हैं, तो ज़ुहद है ही ये है कि दुनिया में से वो चीज़ें तर्क कर दी जाएँ जो बेसिकली हमारे रूहानी मामलात को डिस्टर्ब कर रही हैं। अब इसमें तारिक दुनिया होने के हवाले से बात मैं नहीं कर रहा, ये बात याद रहे, इसकी कोई इस तरह की रवायत मौजूद नहीं है। मैं अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों को देख लूँ या मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों को देख लूँ, तो उसमें तारिक दुनिया होने की कोई रवायत इस तरह मौजूद नहीं कि अब दुनिया को बिल्कुल छोड़ छाड़ के एक अलग हो जाएँ और खुदा की मखलूक के साथ आपका ताल्लुक़ ही कोई ना रहे, ऐसा हरगिज़ नहीं कहा गया। तारिक दुनिया होने से मुराद जो है मादा परिस्थिति को तर्क करना है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो मेरी ज़िंदगी की रवानी के लिए ज़रूरी है मेरे लिए, तो जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं तो वो भी ज़ाहिर मादा से ताल्लुक़ रखती हैं, मुझे उनको अपनाना पड़ता है। लेकिन जो अज़ाफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब मैं अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए मादियत पसंदी को साथ लेते हुए उन चीज़ों को अपने साथ लगा रहा हूँ कि जिससे मेरा जो रूहानी मामलात हैं उनकी रूटीन में एक डिस्टर्बेंस आ गई है। ज़ुहद के ज़रिए से बेसिकली उन तमाम तर चीज़ों को पीछे करवाया जाता है। उससे क्या होता है कि कम से कम कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वो मेरे लिए एक समझ लें कि एक आसान रास्ते पर चलने के लिए या बेहतर तरीके के साथ अपनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए आसानी पैदा हो जाती है मेरे लिए। अब उसके बाद आता है मुजाहिदा, जिसे हम जोहद कह रहे हैं। ये बिल्कुल मैंने अपनी जिस्मानी एक्सरसाइज के हवाले से मैंने कहा था कि कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं ज़ाहिर उस तरह बिल्कुल हम अगर बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं तो ज़ाहिर है हम वो जो हमारे कैजुअल ड्रेस होते हैं हम उनमें नहीं पहन के चले जाते, शलवार कमीज़ पहन के नहीं करते, हम जनाब ट्रैक सूट पहन लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ स्किन टाइट्स भी पहन लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जी मेरी बॉडी बिल्डिंग के दौरान या मेरी एक्सरसाइज के दौरान या मैं अखाड़े में उतरे हुए पहलवानों की बात कर लूँ तो वो शलवार कमीज़ पहन के तो उतरते नहीं हैं कि वो एक निकर पहन लेते हैं। ज़ाहिर है मकसद क्या होता है कि ये जो अज़ाफ़ात साथ लगी हुई हैं वो किसी तरह भी मेरी एक्सरसाइज को, मेरी वर्जिश को, मेरी रियाज़त को मजरू ना करें, बल्कि मैं अपनी मुकम्मल तवज्जो रियाज़त पर दे सकूँ। ज़ुहद का मकसद उन तमाम तर चीज़ों को दूर करके फिर प्रॉपर तरीके के साथ एक जोहद, एक कोशिश करना जो है, किस लिए, ताकि वही सलाहियतें मैं बार बार करूँगा, बात ये कि वही सलाहियतें जो रूहानी मेरे अंदर पोशीदा हैं मैं उनको एक्सरसाइज के ज़रिए से उभारूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो अमर लाज़म है वो यह है इंस्ट्रक्टर का होना। कोई भी शख्स अगर अपने तौर पर किसी किस्म की भी एक्सरसाइज करेगा उसे वो आउटपुट नहीं मिलेगी, उसका मकसूद जो है उसे हासिल नहीं होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने आप बेजा कुव्वत लगाते रहेंगे, गलत डायरेक्शन में लगाते रहेंगे, तो फिर आप कहेंगे जी मेरे मसल्स बिल्ट अप नहीं हो रहे हैं, या मैं अखाड़े में उतर रहा हूँ तो पहलवानी के साथ जनाब मुझे वो दाव पेच नहीं आ रहे हैं कि जिन तरीके के साथ मैं फ़तह हासिल कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी होता है, जिसे हम मुर्शद भी कहते हैं, जो आपको कम से कम जिस मुजाहिदे से गुज़र चुका है, जिसे पता होता है कि कौन सा दाव किस जगह पे लगेगा और किस तरह की बेहतरी पैदा हो सकती है, उसकी मौजूदगी में कोशिश करना जो है वो मैक्सिमम हमारे लिए वो क्या होता है कि मौसर रहता है। अब इसके बाद इबादात की बात कर ली जाए, यानी ज़ुहद है, जहाद है,
इबादत हैं। तो इबादत क्या होती हैं कि जहद के ज़रिए से जब वो सलाहियतें हमारी उभर कर सामने आ जाती हैं, एक क़ुव्वत हमें मुयस्सर आ जाती है, तो सस्टेनेबिलिटी के लिए उसे मुसलसल मेंटेन करने के लिए, और सिर्फ मेंटेन ही बाद में करूँगा, मेंटेन करने के साथ साथ उसे पॉलिश करने के लिए, यानी एक सलाहियत जब आपके अंदर उभर कर सामने आ जाती है तो सलाहियत में मज़ीद निखार पैदा करने के लिए और उसे तसलसल बख्शने के लिए हमें इबादत का सहारा लेना पड़ता है, और उन इबादत के ज़रिए मुसलसल उस पॉजिटिविटी को, जो रूहानी एक मुस्बत सलाहियत है जो उभर कर रियाज़त के ज़रिए से सामने आती है, उन्हें इबादत के ज़रिए से मुसलसल एक तसलसल बख्शा जा सकता है। और यही असल रियाज़त है। मैं खाना फ़क्र में बैठा हूँ, बड़ी अजीब व गरीब रियाज़ात की जनाब रवायात पाई जाती हैं। मैं तनकीद नहीं करता उस हवाले से कि फ़कीर का हर अंदाज़ बड़ा खूबसूरत अंदाज़ हुआ करता है, लेकिन बहरहाल अहसन तरीन अमल वो है कि जिसके साथ जो है आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी तब्दीली वाज़ेह तौर पर सामने आए। और कतन तौर पर कुछ जो सालिकीन होते हैं उनका भी मतम नज़र इससे बिल्कुल अलग होता है। वो चिल्ले करते हैं, रियाज़तें करते हैं, वो चाहते हैं कि शायद पता नहीं कुछ सॉलिड चीज़ हमारे हाथ में आ जानी है, तो एक ऐसी सलाहियत हमें आ जाएगी जनाब, हम उड़ती चीज़ों को नीचे ले आएंगे तो नीचे वाली चीज़ों को उड़ा के ले जाएंगे। तो ये बजाय खुद एक ऐसा ख़याल होता है जो मातियत पसंदी से मुतल्लिक़ा होता है। तो रूहानियत आपके अंदर छुपी हुई आपकी रूहानी सलाहियतों को उजागर करने का नाम है, उन्हें सल्ब करने का नाम नहीं किसी सूरत में। अल्लाह मालिक आपका हामी नासर है।